students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is conditional blocks in Scratch. Objectives of learning: to learn blocks shapes in Scratch, to know about operators, to understand sensing blocks and conditional blocks. तो आपके कुछ conditional blocks होते हैं Scratch में, उसमें आप किस तरीके से काम करते हैं आज हम वो पढ़ने वाले हैं. We have learnt about Scratch in previous class. You have learnt about the different actions a sprite can perform on the Scratch stage. In this chapter, we will read more about it. तो पीछे की classes में आपने Scratch के बारे में पढ़ा है, sprite किस तरीके से काम करता है. इस chapter में आप उन्हीं चीज़ों के बारे में थोड़ा और जानने वाले हैं. Blocks, shapes in Scratch. As you must have observed, the blocks in Scratch are in different shapes. They are divided into 6 types, namely hat, stack, boolean, reporter, C and cap. तो आपके जो blocks, shapes होती हैं Scratch में, वो अलग-अलग shapes की होती हैं. Total ये 6 types की होती हैं mainly. वो है hat, stack, boolean, reporter, C and cap. सबसे पहला है आपका hat blocks. These blocks look like hat and always come on the top of the script. This means that you cannot place any blocks above them. तो ये जो आपकी blocks होते हैं, ये आपकी नाम से ही पता चल रहा है, hat लिखा हुआ है तो hat जैसी ही shape होगी. hat जैसी shape की होती है ये और आपके script के top पे होते हैं और इसका मतलब है कि इस area से ऊपर, hat block से ऊपर आप कोई और blocks enter नहीं कर सकते हैं. Stack blocks. These are the most used blocks as they perform main commands. These blocks have a bowl shape cut on the top and a bump at the bottom. This makes it easier to stack other blocks above and below them. अब आपके आते हैं stack blocks. ये सबसे ज़्यादा यूज करे जाने वाले stacks हैं. इसके ऊपर भी आप blocks को add कर सकते हैं और इसके नीचे भी. C blocks. As the name suggests, C blocks are C-shaped. They are also known as wrap blocks. These are loop blocks to check if a condition is true in the blocks within the loop. The C blocks are present in the control blocks category. अब आपके आते हैं C blocks. अब जैसे hat से पता चल रहा था कि hat की shape होगी, C से पता चल रहा है कि C shape होगी. अब C shape में आपको इसको आपका wrap blocks भी कहा जाता है. ये जो आपके loop blocks होते हैं उसमें conditioning proper तरीके से है या नहीं है, सही है कि नहीं है वो पता चलता है. और जो आपके कंट्रोल ब्लॉक्स कैटेगरी होती हैं वो आपकी सी ब्लॉक्स में प्रेजेंट होती हैं. कैप ब्लॉक्स. द ब्लॉक्स दैट एंड स्क्रिप्ट्स आर नोन एज कैप ब्लॉक्स. दे हैव अ नॉच एट द टॉप एंड अ फ्लैट बॉटम. They are usually the last blocks in the script. They are also present in the control blocks category. अब आपका आता है cap blocks. आपकी script की जो ending होती है वो आपकी cap block से होती है. इसका bottom flat होता है, ऊपर आपका एक notch भी होता है एकदम top पे. इसके अलावा जो आपकी script का last block होगा ये usually cap blocks होते हैं. ये भी आपका control blocks category में available होता है. Boolean blocks. These are condition blocks which return the values true or false or the number 0 or 1 depending on how they are used in the script. अब आपके आते हैं Boolean blocks. ये आपके condition blocks होते हैं जिसमें आपके true या फिर false आता है या 0 या 1 depending आप किस type की script लिख रहे हैं. Reporter blocks. These blocks hold values which consist of numbers or strings. If you ask what is 3 plus 3, it will answer 6. They have rounded edges. अब आपके आते हैं reporter blocks. इनके edges जो होते हैं वो rounded होते हैं, shaped नहीं होते हैं. जिस भी type का आप question पूछते हैं. For example, अगर आपने पूछा है what is 3 plus 3, तो ये blocks आपको reply करते हैं with the answer 6. Do you know you can open any project from the website https://scratch.mit.edu/ and click on See Inside to see its script. अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट जो आपकी वेबसाइट है, जैसे यहाँ पे आपको एक वेबसाइट गिवन है, इसकी अगर आपको स्क्रिप्ट चेक करनी है तो आप सिंपली सी इनसाइड पे अगर जाएंगे तो आप इसकी स्क्रिप्ट देख पाएंगे. Sensing blocks. Sensing blocks in Scratch sense the input from the keyboard or the mouse at the time of execution of a script. Some of the sensing blocks and their functions are given below. Number 1, ask what is your name and wait. Block prompts the user to type the input using the keyboard. It waits for the user input. No other block runs at that time. Second, touching mouse pointer.
Block checks if the sprite touches the mouse pointer, not the sprite or the edge. If the answer is true, then it executes the blocks given after it in the condition. If false, then it executes other blocks as per the given condition. Third, touching color. Block checks if the sprite is touching the color chosen in the block. If true, then it executes a set of blocks, else executes another set of blocks. Fourth, color is touching. The block checks if the first chosen color is touching the second chosen color. If true, then it executes a set of blocks, else executes another set of blocks. Fifth, key space pressed. Block checks if the chosen key is pressed by the user. If true, then it executes a set of blocks, else executes another set of blocks. अब आपके आते हैं सेंसिंग ब्लॉक्स. ये जो आपके सेंसिंग ब्लॉक्स होते हैं स्क्रैचिंग सेंस में, कीबोर्ड से आप कुछ भी इनपुट डालते हैं उनको सेंस कर लेते हैं. इसमें भी आपके 5 टाइप के सेंसिंग बटन्स होते हैं. पहला है आपका व्हाट इज योर नेम एंड वेट बटन. ये ब्लॉक प्रॉम्प्ट करता है आपके कीबोर्ड पे कोई भी टाइपिंग के लिए, वेट करता है यूजर इनपुट का और उस टाइम पे आपका कोई भी दूसरा ब्लॉक नहीं चल रहा होता. दूसरा है टचिंग माउस पॉइंटर. ये ब्लॉक आपका देखता है कि आपका माउस पॉइंटर टच कर रहा है किसी स्प्राइट को या किसी एज को या फिर नहीं. अगर ऐसा होता है तो किसी भी ब्लॉक को जो भी आपकी गिवन कंडीशन होती है उसके हिसाब से एग्जीक्यूट कर देता है, अदरवाइज दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करता है एज पर द कंडीशन. फिर आपका आता है टचिंग कलर. ये ब्लॉक चेक करता है कि स्प्राइट आपके चूजन कलर को टच कर रहा है या नहीं. अगर कर रहा होगा तो आपके सेट ऑफ ब्लॉक्स को सेट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक्स को करता है. फिर आपका आता है कलर इज टचिंग. ये ब्लॉक चेक करता है कि आपका जो चोजन कलर है वो आपके सेकंड चोजन कलर को टच कर रहा है या नहीं. इफ ट्रू तो आपके सेट ऑफ ब्लॉक्स को ये एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक्स को करता है. देन कम्स योर की स्पेस प्रेस्ड. ये ब्लॉक चेक करता है कि जो यूजर ने की प्रेस करी है वो चूज हो रखी है या नहीं, या फिर चूज करी हुई की को यूजर प्रेस कर रहा है या नहीं. इफ ट्रू, अगर ट्रू होता है तो वो आपकी कमांड या जो भी सेट ऑफ ब्लॉक्स होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज दूसरे सेट ऑफ ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट करता है एज पर द कंडीशन. Let us create a small script to understand the working of sensing blocks. Sensing and input. Let us understand the working of these blocks with the help of a simple project. In this project, we make a sprite asking the name of the user. तो यहाँ पे हम देखेंगे sensing blocks किस तरीके से काम करते हैं. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे. Asking the name of the user. To add sensing blocks to the script, follow the given steps. Step 1. Insert a sprite, drag in on the stage and delete the cat sprite. Step 2. From the event block category, add when clicked block denoting the start of the program. Step 3. Go to sensing block and drag ask what's your name and wait block below the above step. Step 4. From the looks block category, drag say hello for 2 seconds. Step 5. From the sensing block category, drag the answer block on the text field of the say hello for 2 seconds block. Step 6. Click on the green flag button. The message what's your name displayed on the stage along with text box at the button. Type the answer Sangini in the text box and click the tick button present on the answer text box. The answer Sangini will be displayed in the voice bubble for the specified number of seconds. अब अगर आपको ये स्टार्ट करना है सेंसिंग एंड इनपुट, तो सबसे पहले आपको एक स्प्राइट को एंटर करना है. कैट स्प्राइट को डिलीट करके आपको स्टेज पे ड्रैगन को इंसर्ट कर देना है. स्टेप 2 में आपको क्या करना है, आपके इवेंट ब्लॉक कैटेगरी में आपको ऐड करना है व्हेन क्लिक्ड ब्लॉक पे जो भी आपका ब्लॉक होगा, ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो जाए. फिर आपको जाना है सेंसिंग ब्लॉक पे. यहाँ पर आपको ड्रैग करना है आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट ब्लॉक पे, आपके अबव स्टेप के बिल्कुल नीचे में. फिर आपको जाना है लुक्स ब्लॉक कैटेगरी में. इसमें आपको ड्रैग करना है से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स. इसके बाद आपको सेंसिंग ब्लॉक कैटेगरी में जाके ड्रैग करना है आंसर ब्लॉक पे, जो कि आपके टेक्स्ट फील्ड पे होगा, और वहां पर आपके से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स ब्लॉक में ये प्रेजेंट होगा. इसके बाद आपको ग्रीन फ्लैग बटन पे क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद आपका मैसेज व्हाट्स योर नेम विद अ क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले हो जाएगा अलॉन्ग विद द टेक्स्ट बॉक्स बिल्कुल आपके बॉटम पे. आपको अब आंसर टाइप करना है संगनी आपके टेक्स्ट बॉक्स में. क्लिक करना है टिक बटन पे जो कि आपके आंसर टेक्स्ट बॉक्स से प्रेजेंट होगा. आपका आंसर संगनी डिस्प्ले हो जाएगा. कुछ अमाउंट ऑफ सेकंड्स के लिए आपके
बबल, वॉइस बबल पे जितने अमाउंट ऑफ सेकंड्स आपने स्पेसिफाई कर रखे हैं. कंडीशनल ब्लॉक्स. मेनी टाइम्स यू हैव टू डू अ टास्क विच इज डिपेंडेंट ऑन सम कंडीशन. For example, you have to make a mango shake. Then there are two conditions. First, go to the refrigerator and check if mangoes are available. If mangoes are there, then you will make mango shake. Second, if the mangoes are unavailable, you will make another drink. Here, the condition is the availability of mangoes. In such situations, we use conditional blocks. Scratch has two types conditional blocks. तो आपकी कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ टास्क होते हैं जिसमें आपको कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है. जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपको मैंगो शेक बनाना होगा तो पहले तो आप रेफ्रिजरेटर में जाके ये चेक करेंगे कि मैंगोज हैं या फिर नहीं. अगर हैं तो आप मैंगो शेक बना पाएंगे, और इन केस अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई दूसरी ड्रिंक बनाएंगे. तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी क्या है, कंडीशन क्या है, मैंगो की. उसी तरीके से आपके जो अलग अलग टाइप की टास्क आप करते हैं उसमें आपकी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे कंडीशनल ब्लॉक्स का यूज़ करा जाता है. तो स्क्रैच में बेसिकली आपके दो टाइप के कंडीशनल ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं. दे आर इफ देन ब्लॉक. It is a control block. This block works on the condition's value. If the condition is true, then the set of code is executed, else nothing happens. Here the condition is only checked once, and if the condition is changed to false while the script is running, then the script will keep running until it is finished. तो अब आपका आता है सबसे पहला है if then block. ये आपका कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसमें आपकी कंडीशंस की वैल्यू गिवन होती है. अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये सेट ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता है, और अगर आपकी कंडीशंस सही नहीं है तो ये कुछ भी नहीं करेगा. नथिंग विल हैपन. इसके अलावा आपका कोड जब रन कर रहा है, बीच में अगर कुछ एरर आ जाता है या बीच में कुछ गलत हो जाता है तो ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका वो गिवन टास्क खत्म नहीं हो जाता. Let us understand the working of the wait block with the help of a simple project. In this project, if the user types A, then the sprite must glide for 1 second. तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वेट ब्लॉक में आप किस तरीके से काम करते हैं. यहाँ पर अगर यूजर ने टाइप करा है A, तो आपका जो स्प्राइट है वो 1 सेकेंड तक कम से कम ग्लाइड करना चाहिए. तो स्टेप 1, click on event block and choose when click block denoting start of the program. Drag it to center. Step 2, click on control block and drag if then block below the above step. Step 3, go to the sensing block and drag key space pressed and place it inside the condition of if then block and change space to A. Step 4, go to motion block and drag glide 1 sex to random position inside if then block. Step 5, now run the program. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप इवेंट ब्लॉक पे जाएंगे और चूज करेंगे व्हेन क्लिक ब्लॉक को, ताकि आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो जाए. ये डिनोट करने के लिए इसको बिल्कुल सेंटर में आप ड्रैग कर लेंगे. इसके बाद आप जाएंगे कंट्रोल ब्लॉक पे, वहां पर आप ड्रैग करेंगे इफ देन ब्लॉक को बिल्कुल आपके ऊपर वाले स्टेप के नीचे. फिर आप जाएंगे सेंसिंग ब्लॉक पे, वहां पर आप ड्रैग करेंगे की स्पेस प्रेस्ड वाले ब्लॉक को, और उसको आप जो आपका इफ देन ब्लॉक होगा उसमें आप स्पेस से चेंज कर देंगे, उसको ए से स्पेस लिखा होगा उसको आप ए कर देंगे. उसके बाद आप मोशन ब्लॉक पे जाएंगे और ड्रैग करेंगे ग्लाइड 1 6 टू रैंडम पोजीशन, जो कि आपका इफ देन ब्लॉक के अंदर होगा. फिर आपको स्टार्ट करना है, आपका प्रोग्राम को रन करना है. ये ब्लॉक्स एक के नीचे एक स्टैक्ड होते हैं. सेकेंड कंडीशन वैल्यू है इफ देन एल्स. It is a control block. The block is an extension of the if then value. If a condition is true, then a set of lines get executed. If a condition is false, then else part is executed. Let us understand the working of the wait block with the help of a simple project. In this project, if the user types A, then the sprite must glide for 1 second, else the sprite must say hello. तो यहाँ पर ये भी आपकी if then value का extension है, if then else वाला block. और इसमें आपकी अगर कंडीशन ट्रू होती हैं तो सेट ऑफ लाइंस आपकी एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं. इसमें अगर आपने या किसी भी यूजर ने ए टाइप करा हुआ है तो आपका जो स्प्राइट है वो एटलीस्ट 1 सेकेंड तक ग्लाइड करना चाहिए, अदरवाइज जो आपका स्प्राइट है इट मस्ट से हेलो. Step 1, click on event block and choose when clicked block.
Step 2, click on the control block and drag if then else block below the above step. Step 3, go to the sensing block and drag key space pressed and place it inside the condition of if then block, change space to A. Step 4, go to motion block and drag glide 1 sex to random position inside the if then block. Step 5, go to looks block and drag say hello block inside else part. Step 6, now run the program. अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इवेंट ब्लॉक पे जाना है और आपको चूज करना है व्हेन क्लिक्ड ब्लॉक को. सेकंड में आपको कंट्रोल ब्लॉक पे जाना है और ड्रैग करना है इफ देन एल्स ब्लॉक को बिल्कुल ऊपर वाले स्टेप के नीचे. इसके बाद आपको सेंसिंग ब्लॉक पे जाना है, वहां पर आपको ड्रैग करना है की स्पेस प्रेस पे और उसको प्लेस कर देना है आपके कंडीशन ब्लॉक के अंदर, जहां पे आपको चेंज करना है स्पेस से उसको कन्वर्ट कर देना है ए पे. फिर आपको मोशन ब्लॉक पे जाना है, वहां पर आपको ड्रैग करना है ग्लाइड 1 सेक्स टू रैंडम पोजीशन इनसाइड द इफ देन ब्लॉक. इसके बाद आप लुक्स ब्लॉक में जाएंगे, वहां पे आप से हेलो ब्लॉक को ड्रैग करेंगे इनसाइड एल्स पार्ट. अब आपको अपना प्रोग्राम रन करना शुरू कर देना है. Critical thinking. What do you think? Which actions will be missing in Scratch without the looks block category? तो अगर आपने किसी भी Scratch में looks block category को skip कर दिया है तो कौन से actions मिस होंगे, ये आप खुद से बताएंगे. Operators in Scratch. In Scratch, operator blocks are blocks of code that perform mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. You can use operator blocks to perform calculations and make decisions based on the result of those calculations. These blocks used to perform arithmetical operations on the numbers and variables. These need to be snapped inside the say hello block. तो आपके जो ऑपरेटर्स होते हैं आपके स्क्रैच में, ये आपके वो ब्लॉक ऑफ कोड्स होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं. एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, किसी भी तरीके का आपका मैथमेटिकल प्रॉब्लम होता है वो ये सॉल्व करता है. इसके अलावा आपके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसका रिजल्ट ही आपको देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशंस. ये ब्लॉक्स परफॉर्म करते हैं अरिथमेटिक कैलकुलेशंस. अरिथमेटिक का मतलब क्या होता है, मैथमेटिकल. तो मैथमेटिकल अरिथमेटिक एक ही चीज होती है. इन टाइप की कैलकुलेशंस को ये कैरी फॉरवर्ड करता है जिसमें आपके नंबर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, एंड दीज नीड टू बी स्नैप्ड इनसाइड द से हेलो ब्लॉक. से हेलो ब्लॉक के अंदर इनको स्नैप करना होता है. These blocks test for equivalence or relative value, equal, greater than or less than. They can be used with control blocks to make logic tests. After doing the comparison, these codes blocks output either true or false. इसमें जो आपके blocks होते हैं ये आपके वैल्यूज के या रिलेटिव वैल्यूज या फिर इक्विवेलेंस दिखाते हैं. इक्वल टू, मोर देन, लेस देन, ये सारी चीजें दिखाते हैं. इसके बाद ये कंट्रोल ब्लॉक्स आपके लॉजिक्स के लिए भी यूज किया जाता है. आफ्टर डूइंग द कंपैरिजन ये जो कोड्स होते हैं ये आपको ट्रू या फॉल्स डिपेंडिंग अपॉन योर वैल्यूज उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स देता है. These and or and not code blocks are used for logical tests, mostly used within a control block. The output of each code block should be either true or false depending on the logic and its input. अब ये जो and और not वाले code blocks होते हैं ये logical test के लिए यूज करे जाते हैं. ज़्यादातर ये आपके control blocks के अंदर होते हैं और आपने जो भी input डाला है उसके हिसाब से end में ये आपको true और false में result देते हैं. This block calculates the number of characters of given string. This block picks a random number from a user defined range. तो आपके उसके बाद एक आता है लेंथ ऑफ, जो भी आपका चीज होती है, ऑब्जेक्ट होता है, ये ब्लॉक कैलकुलेट करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स या फिर जो भी आपकी गिवन स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं. फिर आपका एक ब्लॉक आता है पिक रैंडम 1 to 10. इसमें आपका रैंडम नंबर डिसाइड होता है जो यूजर अपने हिसाब से डिफाइन करता है रेंज की. Programmer to use the mathematical operators to subtract. Number 1, drag the when click block from events block category to the scripts area. Second, drag the say hello for 2 seconds and say hello blocks from the looks block category and place it in the scripts area under the block. Change the text as shown in script. Third, drag the block from the operators block category and put it inside the text field of say hello block. Number 4,
Type the text and numbers as shown alongside. Click on the green flag to execute the script. Sprite subtracting two numbers on the stage. अब आपको मैथमेटिकल ऑपरेटर में आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसी चीज को, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप व्हेन क्लिक्ड ब्लॉक को जो आपके इवेंट्स ब्लॉक कैटेगरी में होगा उसको आपको ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया में लेकर आना है। इसके बाद आप ड्रैग करेंगे से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स एंड से हेलो ब्लॉक जो कि आपके लुक्स ब्लॉक कैटेगरी में होगा, उसको आपको प्लेस करना है आपके स्क्रिप्ट एरिया में अंडर द ब्लॉक। इसमें आपको चेंज करना है आपके टेक्स्ट को जैसे कि आपका स्क्रिप्ट में गिवन है। फिर आपको ड्रैग करना है जो माइनस वाला है ब्लॉक को आपके ऑपरेटर्स ब्लॉक कैटेगरी में, उसको आपको से हेलो ब्लॉक के अंदर जो आपके टेक्स्ट फील्ड में है वहां पर एंटर कर देना है। फिर आपको टाइप करना है आपका टेक्स्ट या नंबर। आफ्टर दैट आपको ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करना है टू एग्जीक्यूट द स्क्रिप्ट। आपका जो स्प्राइट है वो आपके दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देगा। लेट्स रिवाइज। There are 6 types of blocks in Scratch, namely hat, stack, boolean, reporter, C, cap block. The sensing blocks in Scratch sense the input from the keyboard or the mouse at the time of execution of a script. We store data in the computer memory so that we can get information from it later. This data is stored in variables. A variable that stores data in numbers is called numeric variable. A variable that stores data in form of letters or strings is called string variable. Scratch has 2 condition blocks, if then and if then else block. In Scratch, operator blocks are blocks of code that perform mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication and division. तो आपके basically आपके 6 टाइप के ब्लॉक्स होते हैं स्क्रैच में, वो है आपके हैट, स्टैक, बूलियन, रिपोर्टर, सी एंड कैप ब्लॉक। इसमें आपके अलग अलग टाइप की आपकी एक्टिविटीज होती हैं, एक साथ ये स्टैक किए जाते हैं। इसमें आप अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन फिल इन कर सकते हैं, आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। फिर आपके न्यूमेरिक वेरिएबल्स आते हैं स्ट्रिंग में, फिर आपके अल्फाबेटिक वेरिएबल्स आते हैं। इसके बाद आपके 2 टाइप के ब्लॉक्स आपके अवेलेबल होते हैं स्क्रैच में, कंडीशन ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है इफ देन और दूसरा होता है इफ देन else. So students, with this we come to the end of this chapter. इसकी जितनी भी exercises आप खुद से करिए।